तुझे PhD में सेकंड राउंड है बाकी फर्स्ट है फर्स्ट हाँ यस प्लीज हाँ बैठ प्लीज हैव अ सीट तूबा नाम सर तूबा अच्छे तूबा ओके देखिए कि वो आर यू कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेजेस Yes. Tell me about the features of the igneous rocks. Sir, igneous rocks are the one of the three rocks, and then igneous rocks are they are formed from the mantle magma which comes out, and then उनके दो फॉर्म होते हैं, एक तो एक्सट्रूसिव होता है और एक इंट्रूसिव होता है. तो फिर जो igneous rock होते हैं उनके में ये वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब नहीं पाए जाते हैं. Fossils, absence of fossils. Yes, absence of fossil होता है. ठीक है ठीक है. And the study of rocks is you can use both English and Hindi. Lithology. Study of rocks is called Sir, lithology. petrology. Petrology. ओके कोई बात नहीं. चलिए बताइएगा कि रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन किसको कहा जाता है? सर, कोरल रीफ्स. अच्छा लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग? सर, कोरल जो पॉलिप्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं और फिर वो नॉन लिविंग होते हैं. फिर एक जूजेंथिला जो एल्गी होती है वो लिविंग होती है. तो वो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. अच्छा तो क्लाइमेट चेंज का क्या असर है इनका? सर, जैसे इनके ऊपर जो एक टर्म आता है कोरल ब्लीचिंग का, इनका जो कलर है वो खत्म हो जाता है और वाइट हो जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ये रह सकते हैं. तो अगर हम ओशन टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर वो एल्गी जो होते हैं इनको छोड़ के चला जाता है. क्लाइमेट एंड वेदर सबसे ज़्यादा इस स्ट्रेटोस्फेयर और ये सब तो होता है ना, सबसे ज़्यादा किस स्फेयर में क्लाइमेट और ऐसे चीज़ें? ट्रोपोस्फेयर. ओके एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द एल्बिडो? एल्बिडो सर, एल्बिडो जो सनलाइट जो इंसोलेशन हमारे अर्थ पे आती है फिर जो वापस चली जाती है उसको हम एल्बिडो कहते हैं. और जो अर्थ का एल्बिडो ऑफ द अर्थ इज? सर, इट्स अराउंड 31. एंड हाईएस्ट एल्बिडो इज फाउंड इन प्लेटू एरिया और ग्लेशियर. ग्लेशियर, यस सर, सिंस आइस जो रिफ्लेक्ट कर देती है. एंड लिस्ट जो है कहाँ होता है सबसे कम? लीस्ट सर, आई गेस. Okay, because no problem. Can you tell me about some thesis of the related to the origin of the Earth? सर, वन इज प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस जो बोलते हैं कि एक्रेशन से होता है. फिर एक डस्ट. Who first talk about the origin of the theories of the origin of the Earth? First, who talked about? आई डोंट रिमेंबर. Manuel Kant was there. ये सर उनकी डस्ट हाइपोथेसिस थी शायद. अच्छा. उसके बाद क्या हुआ? फिर सर चैम्बरलिन और मॉल्टन की थ्योरी आई. फिर टाइडल हाइपोथेसिस. Tidal hypothesis was given by James. Yes, sir. Okay. And nebular hypothesis was? Sir? Nebular hypothesis was given by Laplace. Laplace. And most popular theory is So Big Bang. which was given by Edwin Hubble Edwin Hubble, yes. telescope. Yes, sir. Okay. And how the Big Bang theory is the expansion of the universe. How it is related to some of the predictions and some of the conclusions by Einstein also have any relation of it? Sir, Einstein talked about उन्होंने relativity के बारे में और expanding universe. सर, उन्होंने जो gravitational waves वगैरह की theories दी हैं कि कैसे वो जो Both were the, I suppose, contemporaries. sir, that I'm not Hubble, the timing of the Hubble was 1920. Yes, sir, and Einstein. Einstein was the same. Yes. The same. Have you studied in those perspective or not? Sir, I know this. Einstein talked about this space-time and then gravitational waves and all, and then Big Bang theory also talks about this explosion. But you have not studied in that manner. Yes, sir, in that manner. What is the reason? Yes, okay, no problem. So, and what is the concept of black hole? So black hole is a kind of area in the universe which has very huge gravitational waves, so that light even can't. Okay, escape. okay. And how it is related to the Big Bang, or it is not related? Okay. I
And who was Schmidt, a German geographer, who gave the hypothesis of O. Schmidt? Okay. He also gave gaseous hypothesis. Gaseous hypothesis, yes. Yes. Okay. So okay, some questions will be. Have you any idea of river system in from Indian geography? Some questions will be there. In Uttarakhand region, in how the Ganga evolved, originates from where, and how it formed, which river merged in it, in specifically Uttarakhand. So Uttarakhand, since it lies in Shivalik, so and then कहाँ से निकलती हैं Sir, Gangotari. और फिर वो कहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ Sir, मिलती हैं? Alaknanda and Devprayag, they meet and then they meet. In Devprayag. And before that, Sir, अलकनंदा का कहाँ से निकलती है? Alaknanda glacier, I don't remember the name of अच्छे, तो है ना सब प्रयाग तो उसी पे है. it. Yes, रुद्रप्रयाग इज देयर, yes, sir. Devprayag, कर्णप्रयाग इज देयर, विष्णु प्रयाग इज देयर. सभी प्रयाग तो उसी से बनता है. yes. कभी तो गंगा बनाओगी. चलो, मंदाकिनी मिलती है ना रुद्रप्रयाग में जो है. So Mandakini and हाँ, पिंडर इन द कर्ण प्रयाग, धौली गंगा इन विष्णु प्रयाग. व्हाट इज द क्लाउड बर्स्ट? cloudburst is, sir, it a kind of we can call it atmospheric hazard. Is when the rain is there, which is way better, way more than the normal rain. तो फिर सर जैसे कितने एरिया में कुछ उसका डिफिनीशन है? अच्छा, ठीक है. Okay. And how much rain, how much mm of rain it falls in cloudburst in a particular area? Then you define it as cloudburst. Okay. What is plate tectonics? So plate tectonics is a theory जो अपने अर्थ के जो कंटिनेंट और लैंड मासेस की प्रेजेंट थ्योरीज है सर. तो ओरिजिन बहुत सारी पहले थ्योरीज बनी थी, बट देन दिस इज द लेटेस्ट थ्योरी विच इज मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड इट वाज गिवन इन 1960s. जो हम लोगों को होती क्या है ये? इसका प्रिंसिपल क्या है? सर प्लेट टेक्टोनिक्स का ये है कि जो प्लेट्स हैं हमारी, जो माइनर और मेजर प्लेट्स हैं, वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होती हैं. और फिर जब वो एक दूसरे से टकराती है, सर 3 तरह के प्लेट मार्जिन्स बताएंगे, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड देन कंजर्वेटिव. और फिर जब उनके मूवमेंट क्यों होता है प्लेट्स का? सर जैसे अभी तो इतना बहुत अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पर देन हम लोग मानते हैं कन्वेक्शन करंट्स होते हैं जो मेंटल में ऐसे ओरिजिनेट होते हैं. और फिर से वहाँ से वो जब मेंटल के कौन कौन से किस किस चीज से बना होता है? मेंटल के 2 पार्ट क्या होते हैं? सर एक एस्थेनोस्फेयर होता है, उसके नीचे गवर्नमेंट ऊपर वाली लेयर कौन से मटेरियल की बनी, क्या बोलते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिनियम. सियाल. और नीचे वाली प्लेट मटेरियल? सर उसके नीचे तो निकल और फेरस. सियाल के नीचे क्या होता है? सियाल के जस्ट सीमा नीचे और सीमा. सीमा के किस चीज से मिलकर बना सर हुआ? वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, फिर नीचे सिलिका. सिलिकॉन नहीं, सिलिका. सिलिका. और अच्छा, सियाल ऊपर क्यों होता है, सीमा नीचे क्यों होता है? सर क्योंकि वो लाइट मटेरियल होते हैं, तो इसलिए वो फ्लोट. डेंसिटी कम होती है. एप्रोप्रिएट वर्ड, डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है ना, इसलिए वो ऊपर होती है. जो भारी चीज होती है वो नीचे रहती है. और कोर में भी कौन से मेटल एबंडेंट होते हैं? निकल और आयरन होता है जो हैवी होते हैं ज़्यादा. आइसोस्टेसी क्या होता है? सर आइसोस्टेसी की जो थ्योरी है वो प्रैट और उसके बाद उन्होंने मतलब बताया था. आइसोस्टेसी होता क्या है? सर आइसोस्टेसी एक तरह का वो है, मतलब हम प्रिंसिपल बोलेंगे जिसमें हम जानते हैं कि जो हमारा जो डेंस लैंड मास है वो कैसे टिका हुआ है, क्योंकि उसके नीचे कुछ है वो जिसकी वजह से उसका रूट है या उसके ज़्यादा डेंसिटी का कोई मटेरियल. एग्जांपल दे सकते हैं? सर जैसे हमारा हिमालय है, तो माना जाए सबसे पहले जब इंडिया में आइसोस्टेसी की जो थ्योरीज आई तो बोला गया था कि ये जो लाइट मटेरियल का है इसी की वजह से ये टिका हुआ, और इसके नीचे इतना ही मटेरियल का कुछ होगा, या तो उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी या उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी जो उसको सस्टेन करना. Who coined the term plate? टूजो विल्सन, कैनेडियन.
अच्छा, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कौन था, किसे कहते हैं? डेविस का नाम सुना है? Yes, अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजी। फोर्सेस कौन कौन से वर्क करते हैं अर्थ में? सर एक तो अपना एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, एक अपने एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। अच्छा, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के रूट कॉज क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? मेन जो अर्थ के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही होती है या रेडियो एक्टिव डिके मटेरियल होता है, और फिर सर वेदरिंग क्या होता है? सर वेदरिंग इज इन सीटू, जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं, जिसके बाद जो अपने डेरिवेटिव एजेंट्स होते हैं, आइस, क्ले, विंड एंड देन वाटर, रिवर, ये सब, तो उसके वजह कितने टाइप की होती है वेदरिंग? सर वैसे देखा जाए तो अगर कॉजिंग एजेंट्स के वजह से देखें तो हम वैसे तो 5 टाइप्स कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके प्रोसेस को देखें तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, लैमिनार डिसइंटीग्रेशन, फिर सर शीटिंग एंड देन एक्सफोलिएशन, ऐसे करते हैं। ओके, व्हाट इज ITCZ? आईटी सर इस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये अपने इक्वेटर के अराउंड होता है, जहाँ पे अपने नॉर्थ जो विंड्स होती हैं और उधर सदर्न की जो विंड्स होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं। और कन्वर्ज क्यों करती हैं? सर क्योंकि ट्रेड विंड्स होती हैं, जब वो समर सॉलिस्टिस का टाइम आता है, तो फिर जो विंड्स सर क्योंकि वो मतलब क्यों इक्वेटर की तरफ ही क्यों आती हैं विंड्स? सर वो दोनों तरफ से? सर वो हेडली सेल वहाँ पे वो वर्क कर रहा होता है, तो फिर क्या कर रहा होता है? सर हेडली सेल जो वहाँ पे नहीं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि वहाँ इक्वेटर पे क्यों आ रही हैं हवाएं, वहाँ से उधर क्यों नहीं चली जा रही हैं दूसरी सर, क्योंकि साइड? इस तरफ अपना हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, तो किधर? सर जो इक्वेटर उधर जो पोल्स tropics हैं, पे, yes, sir, पोल्स की tropics- तरफ मतलब yes, sir. हाई प्रेशर है सर, तो wind- और बीच में लो प्रेशर है। और लो प्रेशर क्यों है? सर क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से जो है हाई टेम्परेचर में हवा ऊपर की तरफ उठती है, जब कोई जगह खाली होगी तो वहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, तो अपने आप उसको ऑक्यूपाई करने के लिए एयर या कोई भी चीज़ है, अगर पानी का भी प्रेशर हो, किसी भी चीज़ का है, यहाँ पे तो एयर की बात हो रही है, तो एयर लो प्रेशर की तरफ आए। ठीक है सर? हाँ जी, हाँ, ये बताइए आप मुझे, आप हरियाणा का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हरियाणा ज्योग्राफी में खास करके एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में क्या क्या मेन चैलेंजेस इस समय हरियाणा स्टेट फेस कर रहा है, और आने वाले समय में उनको हरियाणा स्टेट कैसे रोकने का प्रयास कर रहा है? सर फर्स्ट इज कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह, और सर और दूसरी चीज़ ये कि जो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और तो सर जैसे इसकी जो ग्राउंड वाटर वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह, शुगर केन और राइस वगैरह जो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है, तो हरियाणा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी अभी, मेरा पानी मेरी विरासत करके, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि ठीक है आप शुगर केन कम यूज़ करो, हम आपको सब्सिडी वगैरह देंगे। और सर अभी आपने बोला कि वाटर स्कैरिसिटी, कि भाई आपका पानी की दुर्लभता हो रही है, तो उसका क्या कारण आप मानते हैं मुख्य रूप से? सर हरियाणा में या जी, हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ। सर एक तो अपना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, फिर नहीं नहीं, वो मतलब सर, वो एक हो रहा है, urbanization- उसका क्या कारण क्या है, क्या रीज़न है ज़्यादा हो रहा है? सर एक तो अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से हमको पानी ज़्यादा चाहिए। देन सर थोड़ा क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट है कि हमारे इरेटिक मानसून हो रही है, तो हम ऐसे प्लान नहीं कर सकते। एंड एग्रीकल्चर में खास करके क्या हो रहा है, क्या देखते हैं आप, उसका क्या रीज़न है कि भाई ये ज़्यादा क्यों कर रहे हैं एग्रीकल्चर में? ज़्यादा सर क्योंकि जो अपने हाई वैरायटी क्रॉप्स जो होते हैं उनको उसी वक्त पे ज़्यादा, जैसे उनको जो जब चाहिए होता है हमको ज़्यादा देना होता है, अगर उनको पानी ज़्यादा चाहिए हो तो हमको देना पड़ेगा। कौन सी फसल को ज़्यादा चाहिए होता है, जो है वहाँ पे उगाई जाती हैं, जिन जिन फसलों के नाम बताइए कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसमें वहाँ ज़्यादा आपका पानी की जरूरत पड़ती है, चावल के अलावा? पैडी होगा, चावल के अलावा आई गेस लेग्यूमिनस क्रॉप्स होंगे, दाल वगैरह। दाल को तो कम पानी की जरूरत है, आप तो उल्टा बता रहे हैं। शुगर केन होगा, शुगर केन किस एरिया में शुगर केन होता है हरियाणा में बताइए? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम? सर इधर जो इधर किस तरफ? ईस्ट की तरफ जो ईस्ट की तरफ। श्योर है? अच्छा, ये बताओ कि ये जो एग्रीकल्चर में अभी आपने बोला कि भाई एक्सेसिव यूज ऑफ आपका फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इसके कारण अभी हाल ही में कोई ऐसी रिसर्च हुई हो जिससे इसका पता चला हो, और
इसका ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पशु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर एक तो अपना जैसे इंडिया में बोलते हैं कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इंडिया में बोलते हैं कि कहाँ जी सर। कहाँ बोलते हैं? इंडिया में बोलते हैं। नहीं सर, अगर हम कहीं भी यूज़ करें, वैसे अगर पर्टिकुलरली हरियाणा की बात करें तो हाँ। सर अगर हम ज़्यादा यूज़ करें तो उससे अपने बॉडी में कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर हो गया या और भी बहुत सारे कैंसर्स हैं जो इन चीज़ों के कंजम्पशन। कैंसर तो लगभग भारत की प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप उसको हरियाणा से कैसे स्पेशली बता रहे हो? में बिहार की प्रॉब्लम है या जो है आपका दिल्ली में बहुत प्रॉब्लम है, हरियाणा में भी है, तो फिर आप उसको हरियाणा से ही स्पेशल कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि सर हरियाणा में क्योंकि एग्रीकल्चर इंटेंसिटी ज़्यादा है, बाकी अगर बिहार की अगर बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा है, तो इसलिए और उनका क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या ज़्यादा है। हरियाणा में जो कैंसर की शिकायत है और जो दिल्ली या बिहार में है, वो उसके काजेज एक जैसे हैं, सेम कुछ उसकी सेम आपका चीज़ें नजर आती हैं कि भी के कारण जो बिहार में प्रॉब्लम है सेम हरियाणा में प्रॉब्लम है? सर बिहार में तो सर जैसे बोलते हैं कि गंगा रिवर में जो उनके वाटर में ग्राउंड वाटर में कैडमियम वगैरह है उसके वजह से प्रॉब्लम है, तो सर हरियाणा की कोई अलग स्पेसिफिक प्रॉब्लम ओके। अच्छा मुझे आप ये बताइए, आपको हरियाणा में टीचर लगा दिया जाए और ज्योग्राफी जो एक साइंस का सब्जेक्ट है और ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाया जाता है, और बच्चे जो है आपका नेचुरल सी बात है कि ह्यूमैनिटीज़ का तो बच्चा है, वो अगर उसको साइंस अच्छी होती तो वो साइंस फील्ड में चला जाता है। तो ज्योग्राफी बहुत एक ऐसा विषय है कि जो आपका साइंस का है, पर बच्चा साइंस टेम्पर का है नहीं, उसका टेम्परामेंट साइंस का है नहीं, तो फिर आप कैसे जो है आपका उसको पढ़ा पाएंगे, कैसे सिखा पाएंगे और कैसे आप अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे? सर अगर आप साइंस जैसे मैंने ह्यूमैनिटीज से करा है लेकिन मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, और सर ज्योग्राफी को हम ऐसे एकदम साइंस का भी नहीं, बिकॉज कुछ जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, और सर ज्योग्राफी कहीं साइंस पढ़ाया जाता है, कहीं ह्यूमैनिटीज में पढ़ाया जाता है। ह्यूमैनिटीज़ कहाँ पढ़ाई जाती है? सर जैसे जेएनयू में ह्यूमैनिटीज में कहीं एमए होता है, और सर नहीं ह्यूमैनिटीज़ में तो एक है, ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सब्जेक्ट अब ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ा दिया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई उसकी जो साइंस की जो मेन फीचर्स हैं, जो प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक्स, वो पूरी साइंस पर टिकी है, रेनफॉल है वो पूरा साइंस पर है, एग्रीकल्चर वो पूरा साइंस पर है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पूरी साइंस पर है। अगर वो ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ा देगी इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो साइंस चला गया, उसका साइंस का जो थीम है वो तो नहीं गया ना, उस जो साइंस पर बेस है उसका, मतलब जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के वो तो नहीं गए। मैं ये कह रहा हूँ ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाना अलग है, तो उसकी साइंस के प्रिंसिपल को बनाए तो रखेंगे हम, कहीं भी पढ़ाएं उसको। सर बट देन जो ज्योग्राफी का जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है वो तो आपको जैसे सोशल ज्योग्राफी पर वो सोशियोलॉजी है, बहुत एरिया कम है, मतलब मैं कह रहा हूँ जो साइंस का बहुत एरिया है वो आप उसको जस्टिफाई, जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, ओशिनोग्राफी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, कितना बड़ा एरिया है आपका, प्रैक्टिकल का एरिया है। तो सर जो जैसे ज्योग्राफी जैसे हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी जो उन चीज़ों को डील करता है जो ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ पाई जाती है, और उसके नीचे फॉर एग्जांपल जियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, या इवन हाइड्रोलॉजी जो इंजीनियरिंग। तो ये सारा साइंस बोर्ड है, उसको कैसे टीच करोगे? आपने क्या कुछ ऐसा साइंस का किया है? सर साइंस का नहीं किया है, लेकिन जो सिलेबस है वो तो मैंने किया है, और फिर सर जो चीज़ें हैं आपका साइंस टेम्परामेंट है, मतलब सर कैसे सर, क्योंकि आपका टेम्परामेंट साइंस है या नहीं है, ये बताइए। सर जैसे सर्कमस्टांसेस आएंगे फिर मैं उस हिसाब से अपने आप नहीं, आपका टेम्परामेंट साइंस का है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, सर्कमस्टांसेस को छोड़िए। सर अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें, यस सर कह सकते, क्योंकि कह सर सकते हैं कि है, है। आप श्योर नहीं मतलब कि मेरा टेम्परामेंट श्योर नहीं मतलब। ओके, आप लॉजिकल हैं, लॉजिकल हैं आप, लॉजिकल यस रीजनेबल हैं, रीजनिंग है आपके पास, यस तो फिर साइंस का टेम्परामेंट यही तो होता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ आप मुझे कि हरियाणा आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप जेएनयू से पास आउट हैं, आपका इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड है, ज्योग्राफी में तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपका जिनकी हिंदी समझ में नहीं आती, जैसे भू आकृति विज्ञान, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आकृति क्या होती है, पहले तो बच्चों को आकृति दिखाने में दिक्कत आएगी, और बच्चा है वहाँ ग्रामीण परिवेश का, आप हैं शहरी परिवेश के, आप शहरी परिवेश के हैं, बच्चे हैं आपसे बड़े बड़े, आप हैं बिल्कुल छोटे बच्चे, तो उनको कैसे टैकल कर पाओगे? क्लास में एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो क्लास में बच्चों को दबा भी ले,
क्योंकि कॉलेज का बच्चा है, गांव का बच्चा है, वो ऐसे बोलेगा कि जैसे उस टाइप आपको लगे कि जैसे वो धमका रहा हो, तो फिर आप उसको कैसे टैकल कर पाएंगे? आपके पास ऐसा कौन सा प्लान है कि उसको टैकल करेंगे? या सर पहले तो ये है कि लाइक अब टीचर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल पर्सनालिटी से ज़्यादा हाउ दे बिहेव वो ज़्यादा मैटर करता Okay. है। और सर जैसे अगर आप बात करो अगर एज की, तो सर कभी मतलब मैंने ऐसा फील किया कि अगर स्टूडेंट टीचर में ज़्यादा एज गैप नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कह पाते हैं, Okay. जो एक बड़े टीचर्स होते हैं उनसे जो हम रेस्पेक्ट कमांड करते हैं तो उस चीज़ में वो चीज़ें रह जाती हैं। दूरी होती है मतलब? यस Okay. जहाँ सर हिंदी इंग्लिश की बात रही तो सर चीज़ लाइक आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स से मुझे हिंदी में चीज़ें मैं समझा सकती हूँ, प्रोसेस हो गई उसमें तो ज़्यादा बिकॉज मैं हिंदी जानती हूँ अच्छे से। और सर टर्म्स की बात रही तो वो मैं सीख लूँगी जब पेनी प्लेन को हिंदी में क्या कहेंगे? पेनी प्लेन में क्या टर्मिनोलॉजी क्या कहेंगे उसको हिंदी में? कुछ भी दो आप। अच्छा, एक बात ये बताइए कि हाइट का टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है? सर हाइट नॉर्मल लैब जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है बिकॉज एयर की डेंसिटी नीचे ज़्यादा होती है और particles- कैसे, मतलब क्या है उसका रेशो? सर 6.5 डिग्री पर 1000 किलोमीटर पर 1000 मीटर पर किलोमीटर नॉर्मल अच्छा, लैब। और उससे ऊपर और? सर उसके बाद अगर जब हम कंडेंसेशन लेवल पे चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट काम करने लगता है क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिल जाती है तो फिर वो धीरे धीरे कम होता है। वो फिर सर 6 डिग्री पर 1000। नॉर्मल लैब्स रेट को हिंदी में क्या कहेंगे? सॉरी सर। चलिए, यही चीज़ पढ़नी है आपको। वही क्वेश्चन था सर का जी। पास से क्या समझती है? पास सर पास जैसे दो अगर एरियाज हैं जो एलिवेटेड हाइट में बीच की जो जगह होती है। पास देखा है? चल, दो एलिवेटेड हैं, दो मैंने माउंटेन्स हैं यस या हिली एरियाज हैं, Yes. उसके बीच का यस वो पास कहा जाए। चलिए, आपका साक्षात्कार समाप्त हो गया। ठीक है। अब देखिए, हम लोग 3 आधारों पे देते हैं मार्क्स, यस ठीक है? नॉलेज, प्रेजेंटेशन एंड साइकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ कि जो है वो नॉलेज, साइकोलॉजिकल प्रेजेंटेशन एंड साइकोलॉजिकल बैलेंस 12.5 बताया ना सर? देखिए कि साइकोलॉजिकल बैलेंस में जो है वो, अब इसको 4.5 आउट साइकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर 4.5 out of 4.5 we have given 2.5. Knowledge point you have been given 2.5. Presentation basis out of 4 2.5. इसमें क्या है कि वो थोड़ा सा कहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बातें कर ली जाए। मुझे लग रहा है कि अच्छा मार्क्स होगा कि जब आप इसमें 10 के लगभग स्कोर करोगे तो अच्छा माना जाएगा। 8 9 का हाँ, बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही करें सर। 9 का देखो, टारगेट लेके चलो। हाँ, 9 का करो जो है थोड़ा सा अपसाइडेड। तो साइकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब ये क्या है कि इससे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये है उसकी जांच शुरू होती है, मानसिक संतुलन है, तो उसमें कम होगा इसको ठीक हो जाए। कोई विशेष उस पर आपके प्रभाव नहीं है कि वो घबरा गई है इस तरह की कुछ चीज़, ठीक है? तो प्रेशर चेक करने के लिए है, मतलब इस आपको क्या करना है कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है वो थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना है। इसमें क्या है कि वो जैसे हमारे क्वेश्चंस में जो है वो फेलियर ज़्यादा है। एक तो नदी सिस्टम, रिवर सिस्टम क्यों नहीं कर रहे हैं, पूरा हमको बताना पड़ेगा। रिवर सिस्टम पूरा कर लो ना, वो न्यूज़ में रहा है। धौली गंगा में जब एनटीपीसी का जब वो प्रोजेक्ट था, उसमें जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो वो बह गया, उससे वो हाईलाइटेड हुआ। तो नदियों का क्रम जो क्या है ना कि वो जानना चाहिए आप, उसको कैसे बताओ? मैं 2 यूनिट ही करके आई थी फिजिकल। नहीं, यूनिट तो वो तो हम तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन ये बात है कि हमने ट्रेवल बहुत किया है।
हमने उन नदियों के सब और ग्लेशियर्स पे भी हम गए हैं, संयोग से मेरे पास वो मैंने न्यूज़ है। सभी स्टूडेंट्स हमारे हैं आर्मी में, बड़े बड़े ये थे जो हैं, तो मैंने बहुत रीच किया था। तो हम एग्जैक्टनेस ज़्यादा बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब हमने ट्रेवल किया तब बोला है कि बच्चों को आना चाहिए ज्योग्राफी। मेरा 2-3 साल पहले पास के कॉन्सेप्ट जो है मुझे नहीं पता था, तो मैं इस बात बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आता था कि पास क्या होता। जब मैं पास पे चढ़ा, दुनिया के सबसे जितने बड़े बड़े पास में सब पे हमने चढ़ाई की, खडुंगला पास, चंगला पास, केवल एक उंगला पास बस रह गया है जो रिसेंट बन गया है। पास क्या होता है, तो मेरा कॉन्सेप्ट चेंज कर गया। और हमने उसी दिन सोचा कि भारत सरकार को ये आइडिया दिया जाए कि सारे बच्चे और प्रोफेसर्स को पास दिखाया जाए। पास 2 के बीच का कॉन्सेप्ट नहीं होता है भीतर का। पास होता है कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रोड, क्योंकि ये क्या होता है, माउंटेन से एक रेंज होता है, यानी इस पे ये माउंटेन से इस पे ऐसे होगा, तो गोला ऐसे घूमते रहेगा रोड। उस रोड पे घूमते घूमते जब हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा, मतलब इस साइड और इस साइड, जब पास पे तुम हाईएस्ट साइड पे आओगे तो तुम इधर के लोगों को नहीं देख पाओगे और इधर के लोगों को नहीं देख पाओगे। अगर इधर से कोई आर्मी लेकर के अगर पास पे आ गया तो तुमको पता नहीं रहेगा कि इधर से आ रहा है। पास इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोटरेबल रोड, इट इज कॉल्ड पास। वो पास होता है। भीतर ऐसे 2 बाहर ऐसे कहाँ होगा बीच में? डेफिनेशन एकदम अलग-अलग है, ये कमाल का चीज़। डिफिनीशंस जो है वो, और मैंने तो चाहा ही कि है ना, थोड़ी ऑक्सीजन का बहुत कमी रहता है, तो सारे पास पे दुनिया के सबसे बड़े पास हैं। मेरा कॉन्सेप्ट चेंज कर गया। हमने कहा कि भाई जो लोग थे वहाँ पे हायर सेक्रेटरी सब लोगों ने कहा कि सर तो सब बच्चों को और प्रोफेसर्स को बुलाया जाए। ये कॉन्सेप्ट जो है आज तक बहुत जवाब नहीं दिया इसके लिए, कोई बात नहीं। ये रिवर सिस्टम क्या है? रिवर सिस्टम को अच्छा से कर लेना है, सभी जगहों को अच्छा से करना है। कोई आदमी मतलब ये है थोड़ा सा जो है वो कोई ज़रूरी थोड़ा है कि तुम जो चीज़ करके गई वही तुमको पूछ लिया गया टीचर्स को रहे, तो ओवरऑल रहेंगे ना सब चीज़ों का। और ब्रेन का आप शिक्षक की भूमिका में आपको उसमें लॉजिकल चीज़ों को पढ़ाओगे आप। और ये आपकी मतलब ये होती है। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट में ही जब हमने पूछा तो उसमें जो वो झील जो बन जाती है ना आजकल जो है वो मुद्दा बहुत ये था। क्लाउड बर्स्ट में बेसिकली क्या था कि वो अब देखो है कि झील कई बार झील टूट जाती हैं, उसको अलग उसके डेफिनेशंस हैं, उसको GOLF कहा जाता है। अब उसको लेकर के बता तो थोड़ा सा इतना हमारी क्लाउड बर्स्ट से कोई अलग नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर पानी अगर होता है तो उसमें अगर झील की पोजिशन रहेगी तो वो टूट जाता है। तो उससे ये एसोसिएट है, मतलब कोई बताओ तो 360 डिग्री एंगल से बताओ किसी चीज़ को। आइंस्टीन का जब हमने उस पर कहा तो वो हमने कहा कंटेम्प्रेरी है, ये है। और सबसे फर्स्ट जो है इमैनुअल कांट के बारे में, ये वाज अ फिलोसोफर, एथिक्स में भी पढ़ाया था आपको। बाकी ओवरऑल बाकी आपका होने के कंडीशन है, तो शुरू के आंसर्स जो है बहुत अच्छे दिए। लॉजिकल लॉजिक भी है इनके पास, क्योंकि जब मैंने इनसे वो पीरियड वाला पूछा था बिल्कुल तो उसका लॉजिक में क्रॉस क्वेश्चनिंग करता रहा, तो लास्ट पॉइंट तुम जो जानती हो उस चीज़ को तुम बहुत धड़ल्ले से बता देती हो, बहुत अच्छे वे में बता देती हो। अच्छी आपकी पर्सनालिटी है, मतलब कि कोई प्रेशर नहीं है, मुस्कुराहट के साथ आपने जवाब दे देती हैं। ये सब आप में प्लस है मेरे समझ से। आप होने वाली करिए इन चीज़ों पे दुर्बलता है तो बताना मेरा काम है, वही ये चीज़ों को आप कर लो। बाकी बहुत प्लीजेंट आपकी पर्सनैलिटी है, अच्छे यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सर में जो उसमें है उसमें कुछ क्वेश्चन है तुम फंस रही है सर। हाँ बताइए। देखिए सर, जो स्कोर देते हैं हम उसको मानते हैं कि बहुत टाइट देते हैं, बट मैं आज थोड़ा सा ये कहूँगा कि पहली बार है ऐसा कि आपको थोड़ा सा मतलब स्कोर दे दिया सर ने। नहीं सर का बहुत टाइट रहता है, जैसे हम BPSC वगैरह UPSC वगैरह कहीं भी मतलब देखें तो मैं कहता हूँ कि सर जितना स्कोर देते हैं तो उससे आप मतलब 10% 20% जो भी ऊपर के मन मान के चलिए। बट आज मैं ये कहूँ कि जैसे पर्सनली सर मैं सॉरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसे हम कहते नहीं मतलब आपको, बट मुझे जो लगा आज मुझे पर्सनली जैसे साइकोलॉजिकल बैलेंस आपका जो प्रेजेंटेशन है और नॉलेज है, तो नॉलेज में जैसे मैं कहूँ तो 2 हैं, और साइकोलॉजिकल बैलेंस में
भी आपका वही 1.5 से 2 है, मतलब मैं एक्यूरेट आपने थोड़ा और घटा ही दिया। हाँ घटाया मैंने सर। वो हरियाणा वाले किसी ने मैंने कहा ना कि सर का ओपिनियन मेरे तो हाँ, मैं इसलिए मैंने कहा कि सर मैं थोड़ा माफी चाहूँगा कि हरियाणा वाले तो सही। हाँ 8 के आसपास आता है। प्रेजेंटेशन में भी आपने काफ़ी लैग किया, मतलब मेरे अनुसार सर तो बता ही रहे थे वो 1.5 है, तो 5 साढ़े 5 आता है। अगर मैं कहूँ तो ईमानदारी से मैं मतलब पहली बार बोला हूँ सर के, बिल्कुल नहीं मैं कभी कहता नहीं, हम बहुत टाइम से सर के साथ जुड़े हुए हैं और सर ही चीज़ों को देखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई यूपीएससी बीपीएससी में तो सर कि भाई आप बहुत टाइट कर दो सर, मुझे लगा कि आज जैसे बहुत टाइट करने वाले हैं सर। नहीं तो फिर आपके साथ में लगा कि कि हाँ थोड़ा बच्चा, लेकिन हरियाणा वाला इशू आपका ठीक है। जैसे मैं आपको जैसे सर हैं तो एक तो आप इनफॉर्मल थोड़ा सा हो रही है आपकी लैंग्वेज से, इनफॉर्मल नहीं होना बेटा। अच्छा ये तो फिर जब हमने इंग्लिश से पूछा ही है तो फिर हिंदी में क्यों उतरी? सर क्योंकि हमें पता है कि वहाँ हिंदी में वो थोड़ा हिंदी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहता है। अब इसमें क्या है कि एक तो आप इनफॉर्मल हो रहे थे, मतलब जैसे बोलने के क्रम में कुछ ऐसे सेंटेंस मैंने नोट किए कि जैसे आपको लगा कि हम आपके बिल्कुल फ्रेंडली हैं, आपसे आपके और हमारे बीच में एक लाइन है, उसको हमेशा देखिए, उसका सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं सम्मान आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ इनफॉर्मल, आप उस टाइप में नहीं कि हमारे आपका सम्मान नहीं किया, बट उस लाइन को क्रॉस कर दीजिए। इनफॉर्मल आप थोड़े थे, मैंने जो नोट किया। कई बार आप आई डोंट नो, ये थोड़ा एरोगेंसी नजर आती है। अब उसमें पोलाइटली बोलो ना बेटा, आप टीचर हैं, मन्ने निबेरा ऐसे हरियाणा में कहते हैं, मन्ने निबेरा भाई मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हम थोड़ा सा आई डोंट नो को भी थोड़ा सा हरियाणा में क्या देखते हैं, अच्छा अंग्रेजी हट रहे हैं, नहीं बेरा दे कहते नहीं पता, सिंपल से आराम से भी कह इसको, तो अंग्रेजी में थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। तो आप आई डोंट नो की बजाय आप सिंपल बोलिए सॉरी सर, ये पैटर्न चेंज हो रहा है। सर बोल रहे थे, सर फॉलो में थे, मैं नोट करता रहता हूँ सर की बात कि सर क्या पूछते क्या कर रहे हैं। हाँ तो आई डोंट नो नहीं मैंने लिखा है, मतलब सर ने पूछा था तो आपने कहा आई डोंट नो, तो सॉरी बोलना होता है। हाँ कई बार मतलब जो हैंड मूवमेंट आपको बहुत है, मतलब आप बोर्ड पर थोड़ा ही पढ़ा रहे हो, आप बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हो, हाँ, बोर्ड हाथों को थोड़ा सा रखिए आराम से, मतलब कंफर्ट हो करके बैठिए। पोस्चर जो है आपका थोड़ा फॉर्मल हो रहा है। हाँ पीछे पीछे बैठे हाँ 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 ऐसे मतलब ऐसे कंफर्ट और और अनकंफर्ट तरीके से बैठे, जैसे देखो हम लोग हम कैसे बैठते हैं, अनकंफर्ट तरीके से बैठे हो आप उस टाइम पे, हम जैसे बैठते हैं जब रिलैक्स में रहते हैं तो पीछे ऐसे हो जाता है, नहीं तो ऐसे नहीं। ये पोस्चर हैंड मूवमेंट लगातार चल रहा है, जैसे वो बच्चों को डिलीवर करते हैं मैसेज कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता यार, ये ऐसे होता भाई, नहीं नहीं ऐसे। हम हाथ मूवमेंट का गेस्चर यूज करते हैं, गेस्चर आप यूज करो यहाँ के बॉडी गेस्चर, हैंड गेस्चर नहीं होते, हैंड से मूवमेंट नहीं होती। आप लग रहा था कि जैसे वोल्केनो भी निकाल करके लाएंगे कि वोल्केनो की, बच्चे को लगेगा कि वोल्केनो की बता रही है, मतलब ऐसे नहीं बेटा। दूसरा जैसे आंसर जो है आपने सर ने पूछा था तो उसकी आप कुछ और चीज़ें बताने लगे, तो आपने कुछ टोका भी सर ने कि नाम बताइए, आप उसकी भूमिका दे रहे थे, भूमिका वगैरह नहीं, डायरेक्ट आंसर बताइए। ये बच्चों की प्रॉब्लम है, या तो चीज़ उनको- पूछी जाए, या तो नहीं आ रहा होता तो तब वो घुमाना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ होती सर जैसे नहीं आ रहा होता तो घुमाएगा वो, उसकी सॉरी बोल दो, घुमाने की जरूरत क्या है, या फिर सीधे आंसर पर आओ, बिल्कुल। घुमा के मत लाइए ना। जैसे ग्रेविटेशन पूछा जा रहा तो ग्रेविटेशन बताइए, मत बताइए कि न्यूटन ने ये किया था। हरियाणा के बारे में जैसे सर ने भी बोला, वो भी मैं बोलूँगा, मतलब कि हरियाणा के बारे में जब मैं आपसे आया तो उम्मीद थी मुझे कि आप बताएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे और आप करें इधर वाला इधर वाला उधर वाला, ये कौन सा है इधर वाला, अब मैं क्या समझूँ आपका लेफ्ट कौन सा राइट कौन सा है, आप उसको और कौन सा इधर वाला बेटा तो होता है वही वाला इनफॉर्मल हो रहा था, इधर वाला आपका हाथ कैसे जा रहा था, इस तरफ इधर वाला, ऐसा तो पीछे रखा है क्या, आगे रखा है कोई चीज, उठा ले कि उधर वाला उठा लो, ये कहते हैं अरे वो उधर वाला उठा ले, कोई मैंगो रखा है उठा के खा लो। वो रेफरेंस हमें पता नहीं ना कि आप क्या कह रही हैं, हम- आप अपने दिमाग में सोच के बता रही हैं कि इधर वाला। ऐसा लग रहा था जैसे आप अपने फ्रेंड को बता रही हो कि मेरी बहन ये रखा ना उठा लेना, इधर रखा है, वो समझ लेती है आपसे, क्योंकि वो आपके साथ लंबे टाइम से रहती है। इंटरव्यू वाला तो आपके साथ पहली बार मिला, फिर उसके बाद कभी नहीं, वो कैसे समझेगा इधर और उधर, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो साइन वर्ड्स आप यूज करते हैं, आप इस साइड से इसको मैप रख करके वो ब्रेली की थोड़ी की भी मतलब उंगली लगाई पड़ गई है, वो पड़ जाएगा ये समझ में। हरियाणा में है कहाँ से? ये बच्ची तो यूपी से है, नहीं सर मैं बिहार से। बिहार से।
तो अच्छा, बिहार अब से दूसरी बात ये देखिए, आप जो है वो हरियाणा कैप लेकर के क्यों नहीं देख लेती हो? किस साइड से वो यूपी से टच होता है? सर वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह मैंने याद करी है, लेकिन हाँ ये सिंपल सा है बेटा। इस साइड का हो, वेस्ट साइड का हो। आप सर एक चीज़ और ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल हरियाणा बहुत लाइमलाइट में है। कारण है कि भाई आपका आने वाले 50, 60, 70, 80 साल में आपका डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है कंप्लीट हरियाणा ये डेजर्ट तो इन्वायरमेंट का बहुत इशू बहुत 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 क्रिटिकल है, मतलब एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है। आप साइंटिफिक वो देती ना, उसमें क्या है कि ऊपरी स्तर पे जो जमीन जो एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है उसको जो है वो शेड्यूल बने उस तरीके से लेवल पैटर्न आपने नहीं बताया भाई। हमारा ग्रुप पैटर्न इस प्रकार का कि मतलब पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर आपका प्रॉब्लम कहाँ है? आपका सेम की समस्या है, रेई की समस्या है, राइस कलर की की समस्या है, लवण की समस्या है, हरियाणा लवण की समस्या है, नमकीन हो जाती है आपका ऊपर से, पानी नमकीन है, लवणीय आपका सैलिनिटी बढ़ रही है। हाँ, तो सैलिनिटी सही कह रहे हैं सर, तो वो बढ़ रहा है। आप कितनी चीज़ें हैं, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल। तो आप उस चीज़ को आसान मत लो बेटा। देखो और बच्चे क्या करेंगे हमें नहीं पता, बट आपको लेवल होना चाहिए। आंसर का भी लेवल मांगेंगे फिर हम आपसे। आप प्रोफेसर लगने जा रहे हो, कोई जेपी टीचर लगने जा रहे हो कि भाई चलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रट लो, मैं बैठी हूँ, मैं स्वेटर बुन लेती हूँ, तुम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रटो बेटा। आप स्वेटर बुन करके आ गए, ये नहीं बेटा, आपसे स्टैंडर्ड की आवश्यकता है। बिल्कुल पॉजिटिव सर ने बहुत बताया, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंट हैं आप, हम ये होने के लिए बता रहे हैं। एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम आपकी थी, मतलब एंट्री एग्जिट प्रॉपर नहीं है आपका। शुरू में आए तो थोड़े ड्रेस है में से शुरुआत का था पहला, कोई इशू नहीं हो, पॉजिटिव बहुत है, वो मतलब तो ये ड्रेस समझ लेना। सर वो तो पॉजिटिव बहुत है। पॉजिटिव में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, प्रेजेंट है, नॉलेज ठीक है। मेरे बात नॉलेज के बारे में अगर मैं कहूँ तो नॉलेज अच्छी है, बट ये वो इधर उधर यहाँ वहाँ थोड़ा सा वो फॉर्मल जाना। देखिए इस स्टेट में आप जा रहे हैं, वहाँ के लिए तो वहाँ के बच्चों को आपको वहाँ की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में, क्या है वहाँ की डेमोग्राफी, मतलब क्या पैटर्न है, ये सब चीज़ों का अपना स्टडी करो। तो वो सारा बेटा बेसिक सामने रखा है। बिल्कुल। आज तो गूगल है, आपका सारा का सारा एआई मोड है, आप कुछ भी बोलोगे तो एआई तुरंत दे देता है। नॉलेज के बारे में कहना चाहूँगा कि नॉलेज एज अ प्रोफेसर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं डीप नॉलेज, लेकिन आपकी नॉलेज थोड़ी सतही है। मतलब मान लीजिए 5 पेज पढ़ने हैं तो आपने शुरू का 1 पेज बहुत अच्छा पढ़ लिया, आखिरी 4 पेज में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि जितना आप बताना चाहते हैं उतना बता के फिर दूसरे के सवाल का जवाब नहीं देती है ना। तो थोड़ा उसको और डिटेल में पढ़िए, डिटेल में। जैसे मैंने आपसे आइसोस्टेसी वाला पूछा था, उसमें आपने इक्विलिब्रियम वर्ड ही नहीं यूज किया, जो सबसे मेन वर्ड है। उसके बिना आप कह रहे हैं कि हिमालय नीचे भी उतना है, ऊपर भी उतना है, इसलिए टिका हुआ है, तो लेकिन उसको कहेंगे इक्विलिब्रियम ग्रेविटेशन। तो सतही ज्ञान तो ये तो 6ठी क्लास में भी है ना आइसोस्टेसी, 6ठी क्लास में भी इससे ज्यादा डिटेल में जितना आपने बताया, वहां भी इक्विलिब्रियम वर्ड जरूरी यूज हुआ होगा। तो आप उस पर जाइए, प्रिंसिपल उसका सिद्धांत पे, जो सर ने कहा ना साइंस से इसको रिलेट करिए। सीधा ये नहीं कि एक लाइन बता दी बस हो गया, बोल के निकल गए। वहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप क्या करेंगे? उसमें भी फंस रही थी। साइंस वाले में मुझे अब वहाँ क्यों नहीं अरे बेटी, आज आप आधुनिक युग में रह रहे हो जहाँ पे आपका सारे का सारा एआई यूज कर रहे हो, डेली साइंस यूज करते हो, कह रहे हो मेरे अंदर कंफ्यूज हो रही हूँ। अब ये नॉलेज आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर से भी जाके टच होती है। अब मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ। जैसे आपने सर ने पूछा आपको कॉन्फिडेंस है, तो आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था क्योंकि आपको ज्ञान सतही था, आपको वही 1 पेज पढ़ा हुआ है, आपको पता था कि 3रा पेज अगर पूछ लिया, इसलिए आप डर गए कि नहीं मुझे साइंस का पता नहीं है। आप बैक फुट पे चलिए ना। तो ये सारी चीजें नॉलेज, प्रेजेंटेशन, साइकोलॉजिकल बिहेवियर सब इंटरकनेक्टेड हैं, और ये जब आपकी नॉलेज सतह से गहराई में जाएगी तो ये 2 चीजें ऑटोमेटिकली आपकी निकल जाएंगी। तो बच्चा के बीच में रिस्पेक्ट किससे पाओगे? बच्चा जब पूछने लगेगा कि लेकर किताब से आएगा, जैसे गूगल आजकल तुम पढ़ाओगे ना, मोबाइल खुला रहेगा, वो तुम इधर से पढ़ाओगे, इधर से टाइप कराएगा, यही आगे बोल देगा उसको। अपग्रेड करिए कि मतलब आप अपने आप को अपना स्टूडेंट बनाइए। जैसे आपने आइसोस्टेसी पढ़ा, आप खुद क्वेश्चन करिए होता है क्या यार,
तो आपने सोचा ये पहाड़ क्यों रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम पे रुका है, किस चीज का इक्विलिब्रियम, ग्रेविटेशन का। अब ग्रेविटेशन अर्थ की हर सरफेस के बराबर होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ स्मॉल ए पता है आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है क्या होगा? हाँ? नहीं तो पता नहीं है ना, वो तो लॉज में आता है, तो सबको वही चीज कह रहा हूँ, पता नहीं है। एक्सीलरेशन, कोई चीज गिर रही है तो किस वेग से गिर रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है एक्सीलरेशन। ये हर जगह बराबर होगा, इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसको ये सोचना चाहिए, आइसोस्टेसी में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, तभी तो साइंस से आप रिलेट करेंगे। स्टूडेंट तो पूछ लेगा क्यों, तब नहीं बता पाएंगे आप, फिर वो बाहर कहेगा आता नहीं इनको पढ़ा। मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, तो आप 2 लाइन पढ़िए, उसी को डिटेल में पढ़िए, डिटेल में उसकी बाल की खाल निकालना जिसे कहते हैं ना, ये काम है प्रोफेसर से। इंटरव्यू का डेट कब है? अभी तो 16 से है, बट अभी तो आएगा मेरे ख्याल से रोल ओवर के अकॉर्डिंग है, जैसे कई दिन चलेंगे, 22, 23, 24, 25, 26 फरवरी में। हाँ है, तो 15 दिन आप क्या है इनको तैयार होकर के इसको और भी हाँ और करेंगे। सारी चीज इनकी अच्छी है, डिटेल में जाइए, डिटेल सबसे बड़ी काम चीज करो है बेटा, डिटेल। काम कम है उसको, और दो बार मतलब जो है किसी तभी मिलेगी हमें जब जो है आप सेलेक्ट हो जाएंगी। और सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा जो है देखो, जरूरी नहीं कि ऐसा सपोर्ट मैंने ये होगा, वहाँ पे अगर और भी आप सेलेक्ट करके आ जाएंगे तो डिटेल वालों का ही सिलेक्शन होता है, हाँ, जो बाल की खाल निकालना है, ज्ञान इसी को कहते हैं ना। और सर हरियाणा के लिए हाँ, जो वहाँ की अच्छी वैकेंसी है ये। आप असली चीज़ पे तो आप टारगेट कर ही नहीं रहे हैं, असली चीज़ पे टारगेट नहीं आता। आप ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, बट और काम की जो था हरियाणा में पढ़ा नहीं है तो पढ़ते क्यों नहीं, पेपर पास कर लिया बेटा आपने, पेपर पास करने के बाद क्या करेंगे? हरियाणा की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर का मैं वहाँ गाँव में रहता हूँ, मैं उन चीज़ों को देखता हूँ, मैं उस चीज़ को देख रहा था, जब मैं पूछ रहा था, मैंने उनको काम करके देखा है हाथ से। जब हमने करके देखा है तो उन प्रॉब्लम्स को फेस किया है। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वही है जो करके देखे। माजे सर से मैं पढ़ता तो एक चीज़ कह रहे थे कि नवीन, मैंने कहा हाँ सर, यार खेती में काम किया है, मैंने कहा हाँ सर किया है, क्या मैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा उन्होंने स्टार्ट की, मैंने कहा सर मैं तो सारी जानता हूँ, कहा ये शहर वालों के लिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी गाँव वालों के लिए नहीं होती। तो जब वो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ाते थे तो और वो टेस्ट लेते थे तो मैंने कहीं मार नहीं खाई। मैपिंग रेट 320, 330, 330 ऐसे ये नंबर कभी नहीं होगा। और वो भी जबकि हम लोग ड्रेस सहमे आए थे गांव से, कुछ नॉलेज नहीं थी, तो वो हालत में मतलब आपका स्कोर था। उसमें हमें ये बता था कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कुछ आ जाए, वो तो हमारे घर का काम है और रोज करते हैं। तो ये गाँव वाले बच्चों के लिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी नहीं है, शहर के लिए होती है, वो तो रोज ही देखता है उसको, रोज जीता उसमें। और आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ है कि आप जेएनयू में बैठ करके सुझाव, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं, बट एक्चुअल में धरातल क्या है वो नहीं पता। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर ये अलीगढ़ एम इंस्टीट्यूट। अच्छे, तो काम करो अपने और ये अब पीएचडी कर रही है इसके तहत, मतलब जेएनयू से ही कर रही है, आपसे एक्सपेक्टेशन हाई और ज़्यादा है। जेएनयू हमें से तो होगा। और ये हम तो ये सोच रहे थे कि हमें दोबारा ये कि हम तो बहुत क्लियर नहीं, कैपेबिलिटी है, नहीं है, ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही हैं, आपकी स्टडी मतलब डायरेक्शन सही नहीं, आपके अंदर कैपेबिलिटी सब कुछ है, आप डिटेल में जाइए, आप अपने आप से संतुष्ट हैं कि मैंने बहुत पढ़ लिया। सर नहीं, ये बात नहीं सर, मैंने अभी स्टार्ट करा है और कर रही हूँ। नहीं, हुआ नहीं है। लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। देखिए कोई असल बात नहीं, अभी टाइम उनकी गलती नहीं है, हमारे पास भी रिव्यू सबसे आ रहे हैं। जहाँ से यूनिवर्सिटी में पढ़ी है ना, वहाँ ग्रेजुएशन में ही टीचर्स बहुत अच्छे काम करते हैं। फंडामेंटल्स आज ड्यू में भी सब समस्या है। ये वो पैशनेट टीचर में है कि जो वो उसको जान डालते हैं, बच्चे बने प्रेजेंट बना दिए, बस्ती बन गया हो गया, जान डालना प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रैक्टिकल है। मैंने आपको कहा ना साइंस ज्योग्राफी में भरे पड़े हैं आपका ये पास करके पास करके। ये यहाँ मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन का प्रॉपर नहीं पता है साइंस, प्योर साइंस है वो।
फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड नहीं पता है, आप कुछ भी ऊपरी स्तर पे बता देते गलत बात है। तो असली प्रॉब्लम है साइंस, टेम्परामेंट कहाँ। मैंने बार बार पूछ रहा था कि आपका टेम्परामेंट साइंस, आपने इतना गलत बोला, आपको तुरंत वो कहता चाहिए। आप ऐसी चीज पर हाथ क्यों नहीं भर रहे हो बेटा? हाँ, उसका तो आपका हो ना हो, उसे तो बोलना ही है आपको। तो ये साइंस के बच्चे ही हो, आप किस एरा में रह रहे हो? हाथ में मोबाइल फोन रखा है, यहाँ पे ये लगा रखा है हमने, मतलब ये साइंस ही नहीं तो है, और रिकॉर्ड हो रहा है आपका, ये साइंस नहीं है। इंसान कोई अंतर थोड़ा होता है, वो तो अभी वो कहाँ साइंस नहीं है आपके पास? उसमें बहुत हेजिटेशन है। हाँ बोल रहा हूँ, मैंने बार बार पूछा आपसे। मतलब मैंने ऐसे वो किया कि नहीं आपको हाँ पर नहीं सिर्फ, अरे आप हैं मतलब, मैंने फिर क्या कहा, लॉजिकल है, हाँ रीजनिंग है, हाँ आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि साइंस है, है। तभी तो यहाँ तक आई बेटी। उसको एक्सेप्ट कर लेना है तुरंत। आपको अपनी खूबी को हाँ करो। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर देना, लेकिन जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बताना कि सर ये पॉइंट आप जितने भी हैं आप नोट करिए, सबको आपके नोट काम है। करें, सब काम आएगा। और एक एग्जिट एंट्री सर, एक बार चेक बता दीजिए, एग्जिट थोड़ा सा सबसे सीखिए एक बार। हाँ, एग्जिट जो है वो जैसे कि आई एक बार आप एक बार सबको ये वही चीज़ है। आपका इंटरव्यू समाप्त हो जा सकते हैं, ठीक है? आप उठिए, यहाँ रखिए। थैंक यू सर। घर भी ऐसा ऐसा होप सो। थैंक यू सर। सबको लग रहा है, थैंक यू सर। मैडम वगैरह लग रहे हैं, ठीक है?